Hello everyone, Cheryl here. So today we are going to discuss about Nokia. तो नोकिया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वो नोकिया का छोटा सा फ़ोन आ जाता है। उसका जो रिंगटोन है वो हमारे दिमाग में गूंजने लगता है। इतना जब नोकिया का ब्रांडिंग हमारे अंदर हो चुका था तो फिर नोकिया फेल क्यों हुआ? वही हम आज के वीडियो में जानेंगे, बट उसके पहले वील गो टू द स्क्रैप। वील गो डायरेक्टली टू 1865 जब नोकिया एस्टैब्लिश हुआ था। रिमेंबर, ये जो नोकिया की जो कंपनी जिसे हम जानते हैं फॉर टेलीकम्युनिकेशंस, फॉर हैंडसेट, फॉर मोबाइल फोन्स, जब ये एस्टैब्लिश हुई तब ये मोबाइल फ़ोन की कंपनी नहीं थी। तो फिर ये मोबाइल फ़ोन्स में कैसे आई, क्या हुआ? विल नो एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैप। सो हियर वी बिगिन। So, in 1865, Nokia was established by Frederick Edison and Leo Michelin. Initially, ये सिर्फ ग्राउंड वुड पल्प मिल की कंपनी थी। उसके बाद धीरे धीरे इन फ्यू इयर्स इट एंटर्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो मुझे बताओ ये नोकिया नाम कैसे पड़ा? फिनलैंड में नोकिया करके एक टाउन में ये कंपनी सिचुएटेड थी, इसके लिए उसका नाम भी पड़ गया ये फैक्ट्री का नोकिया। अभी 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में आते तभी पिक्चर में आती है एक फिनिश रबर वर्क्स कंपनी। फिनिश रबर वर्क्स कंपनी नोकिया के कंपनी के पास में ही थी, मतलब इन द टाउन ऑफ नोकिया। तो वो अपना ब्रांडिंग क्रिएट करने के लिए वाज यूजिंग द टाउन नेम नोकिया। So after World War One, Nokia was getting bankrupt. It was going into complete losses. तो ये जो फिनिश कंपनी थी, फिनिश रबर वर्क्स की जो कंपनी थी, उसने नोकिया को एक्वायर कर लिया इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। And in 1932, this Finnish rubber works company also acquired another Finnish company which was into electricity cables. Now these three companies, Nokia, Finnish Rubber Works and Finnish Cable Works, these three companies were working together but they were not legally merged. So in 1967, the Nokia Corporation करके एक company आया which was the merger of these three companies. Now they were working for many manufacturing units. They were like paper items, car and bicycle tires, rubber boots, communication cables, television and other consumer electronics, PC, generators, robotics capacitors, plastics, aluminiums, chemicals and many more. Now, Nokia Corporation means this merger of three companies went ahead for next 15 years. Sometimes this went also in a loss. So now comes into picture is Salora. Salora is also a Finnish company. It was mainly into radio receivers and televisions. So with the help of Salora, Nokia invented radio car phones in the year 1964. And immediately in the year 1970, it invented messaging system. So messaging system was invented for the Finnish Defence Forces. So now in 1979, Nokia and Salora established a joint venture which was now renamed as Nokia Telecommunication. So now Nokia Telecommunication was going to take a great turn. So in 1982, they invented their first car phone which was named as Mobira Senator. So the weight of Mobira Senator was 9.8 kg. You can imagine 10 kg का फोन कार में लेके घूमते थे. Then the second phone they invented was in 1984 which was Mobira Talkman. It was a portable phone, कार के अंदर भी चलेगा, कार के बाहर भी लेके जा सकते हैं, but it was of 5 kg. And the third phone they invented in 1987 was the first mobile phone, Mobira Cityman 900. It was just of 800 grams. But in between that, in 1984 itself, Nokia purchased Salora. So now the Nokia Telecommunication was again renamed as Nokia Mobira. Now Nokia was going to catch the market and Nokia ने develop किया GSM 2G. GSM 2G was commercially available in the market in 1992. It was named as Nokia 1011. 1011 because its launch date was 10 November. 10 November. Again in 1994, Nokia came with its another series which was Nokia 2100. Now this phone had its ringtone, Nokia ringtone. Now Nokia 2100 was taking a great turn. It was a boom in the market. Retailers को phone बेचना भी नहीं पड़ता था, लोग खुद जाके phone खरीद के आते थे. This time Nokia was expecting 4 lakh handsets to be sold, but they actually sold 2 crores handset. इसे कहते हैं मार्केट को समझना, मार्केट की ज़रूरत को समझना और इस हिसाब से अपने बिजनेस में एडॉप्शन लाना, अपने बिजनेस में चेंज लाना। एंड नोकिया ने वो बहुत अच्छी तरह से निभाया।
उसके बाद इन 1992 से 1999 के बीच में दे इंट्रोड्यूस्ड मैनी न्यू हैंडसेट्स, मैनी न्यू सीरीज ऑफ हैंडसेट्स, एंड उसमें दे वर एक्सपेक्टिंग 40 million ऑफ हैंडसेट्स टू बी सोल्ड इन दीज ईयर्स, but actually they sold 250 million handsets, and this was really great for Nokia. They were just booming in the market. Nokia was giving a great competition to everyone others. जो भी दूसरे competitors थे उसके इतना competition दे रहा था. अभी Nokia जो था वो फर्स्ट रैंक पे पहुंच गया था इन द वर्ल्ड. उसने मोटरोला को भी टक्कर दे दी थी. तो 97-98 में Nokia ने 25% मार्केट शेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड उससे ले लिया था. यूरोप एंड अमेरिका में उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे ही, साथ साथ रशिया, इंडिया, चाइना एंड ऑल ओवर एशियन कंट्रीज उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चलने लगे. नाउ नोकिया बॉट मेनी न्यू सीरीज, एंड हमेशा जो भी टॉप 50 की सीरीज होती है उसमें से हमेशा टॉप 20 जो थे वो हमेशा नोकिया ही हुआ करते थे. नाउ टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया, तो 2003 से 2005 के बीच में नोकिया 1100 एंड नोकिया 1110 के जो सीरीज थे वो इतने चले कि नोकिया ने सिर्फ इंडिया में ही 70% मार्केट शेयर ले लिया था. तो उसे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन पावर, जो बाकी सारी चीज़ें थी वो उसे बढ़ानी पड़ी कंटिन्यूसली. तो इस चक्कर में जो दूसरे सारे ब्रांड्स थे, सैमसंग, वीवो, लावा, ओप्पो, ये सारे जो थे ये कम होते गए. 2008 was also very good. It was a boom for Nokia. उनके 450 million handsets सेल हुए थे all over the world. अब पिक्चर में आते हैं गूगल एंड्रॉइड्स एंड एप्पल. ये दोनों अभी तक सिर्फ अमेरिका एंड यूरोप में हुए थे. नोकिया को पता था कि एशियन कंट्रीज में भी आ सकते हैं, बट अभी तक आए नहीं थे. सो नोकिया हैड अ टाइम टू चेंज इटसेल्फ, बट अभी नोकिया बहुत एक्सपांड हो चुका था. हर एक जगह पे उसके ब्रांचेस फैल चुके थे. सडनली चेंजेस लाना वाज नॉट पॉसिबल. आई एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल टर्म. आप बहुत मोटे हो गए हो, यू आर गेटिंग वेरी फ्लफी, बहुत मोटे हो चुके हो. अभी सडनली आप कैसे फ्लेक्सिबल हो जाओगे? सडनली आप बहुत अच्छा डांस कैसे कर पाओगे? यू नीड टाइम, यू नीड टू गेट फ्लेक्सिबल. उसी टाइम पे इफ यू आर वेरी थिन, यू आर शॉर्ट, यू आर कॉम्पैक्ट, तो आपको चेंजेस लाना इजी हो जाएगा अपनी लाइफ में. सेम वे नोकिया के लिए भी पॉसिबल नहीं हो रहा था. अब जब यूरोप एंड अमेरिका में एंड्रॉयड एंड एप्पल अपना खेल खेल रहे थे, उसी टाइम पे चाइना एंड इंडिया में सैमसंग एंड मोटोरोला ने अपना खेल खेला. दे इन्वेंटेड फ्लिप फोन्स. वैसे ना जो दिखता है वो ही बिकता है. तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन के चक्कर में एवरीवन वेंट फॉर दैट फ्लिप फोन्स एंड नोकिया पीछे रह गया यहाँ पे भी. सो नाउ इट इज नॉट इजी. अभी नोकिया भी सोच सकता है कि हम फ्लिप फोन्स बनाएंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, बट चाइना का मार्केट जो इतना स्ट्रांग था, इतनी स्पीड से वो लोअर रेंज के प्रोडक्ट्स बना रहा था कि नोकिया अभी तक सोचे वो प्रोडक्ट डिस्कवर करने का, उसके पहले चाइना के प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में आ भी चुके थे. 2007-8 में तो सिर्फ एंड्रॉयड एंड एप्पल बॉर्न हुए थे एंड वो नोकिया को थोड़ा थोड़ा सा पिंच कर रहे थे. बट इन 9-10 इट स्टार्टेड किलिंग नोकिया. नोकिया की पूरी बैंड बच चुकी थी. अभी आई विल से यू द रिकॉर्ड. 2010 में एप्पल ने ऑलरेडी 3 लाख एप्लीकेशंस अपने अंडर ले लिए थे. एट द सेम टाइम एंड्रॉयड ने भी 1.25 एप्लीकेशंस ले लिए थे. बट नोकिया जो है वो सिम्बियन को चिपका हुआ था. सो उसके पास अभी भी थे सिर्फ 20 एप्लीकेशंस, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर नोकिया. सो इट हैड टू चेंज एनी हाउ, बट नोकिया वॉज नॉट रेडी टू leave Symbian and go towards Android. Nokia did not understand that the market was moving from hardware to software. वो अभी भी एक ही स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहा था, फ़ोन पटकोगे तो टूटेगा नहीं. Now you would say Nokia के पास इंटेलिजेंस टीम नहीं थी क्या? They too had a great intelligence team for their higher range products. But जो हायर रेंज के प्रोडक्ट्स वो लोग डिज़ाइन करते थे फॉर मैन्युफैक्चरिंग, वो जब तक वो लोग का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो तब तक मार्केट में वो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आ चुके थे. मतलब मार्केट उनसे 1-2 कदम हमेशा आगे चल रहा था. देन वी कम टू मीडियम रेंज प्रोडक्ट्स. तो मीडियम रेंज प्रोडक्ट्स को एंड्रॉयड के सिवा कोई टक्कर नहीं दे पा रहा था. एंड लोअर रेंज प्रोडक्ट्स चाइना ने कैप्चर करके रखे थे, तो चाइना को टक्कर देना वॉज बिकमिंग इम्पॉसिबल. एंड्रॉयड ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया था जहाँ पे आके एवरीवन कुड क्रिएट द एप्लीकेशंस. सो LG, मोटोरोला, जितने भी हैंडसेट्स थे, जो ब्लाइंडली जस्ट वेंट टुवर्ड्स एंड्रॉयड and this created their community. But Nokia was not at all ready to leave Symbian. So he had to lower its manufacturing units, he had to remove many of its employees, even he also removed his CEO. And the new CEO was now Stefan Elop. And after the Stefan Elop came, he said
change is necessary and inevitable. It is unavoidable. We have to create change in the market. So Nokia ने भी change किया था. He had the chance to bounce back in the market, but Nokia ने wrong change लिया. Nokia went to Android. Nokia जा रहा था Android के पास कि अभी we'll also be in the market currently, and वो चला जाता तो Nokia अभी तक I believe वो रह पाता. But Nokia वहाँ पे जाने के बाद उसे लगा कि अगर हम भी वहाँ पे एंड्रॉयड में चले गए तो हम में एंड बाकी सब हैंडसेट्स में फ़र्क क्या रह जाएगा. एंड दिस वाज द मिस्टेक. सो वापस आते आते इट वेंट टू विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. सो माइक्रोसॉफ्ट को कहा आपका विंडोज़ हम सॉफ्टवेयर के तरीके से यूज़ करेंगे एंड हमारा हैंडसेट नोकिया का, एंड इट विल क्रिएट अ बूम. बट नोकिया को ये समझ में नहीं आया कि ये जो विंडोज़ का सॉफ्टवेयर था इट वाज नेवर मेड फॉर मोबाइल, इट वाज नेवर कंपैटिबल फॉर मोबाइल फोन्स, इसीलिए तो वो पीसीज पे यूज़ होता है. अभी नोकिया ने जो डिसीजन लिया टू गो विथ विंडोज़, इट वाज अच्छा लगता है इमोशनली. ये सारे स्टेटमेंट सुनने में अच्छे लगते हैं कि हम उनके जैसे हो जाएंगे, सेम सेम हो जाएगा, क्या मतलब है. बट इन बिजनेस प्रैक्टिकल सेंस में इट इज़ ऑफ नो यूज़. यू हैव टू क्रिएट अ कम्युनिटी अराउंड योर सेल्फ. यू हैव टू जॉइन नेटवर्क्स टू क्रिएट योर बिजनेस मोर. सो नेटवर्क यहाँ पे भी नोकिया का नहीं बन पाया था, नोकिया की कम्युनिटी यहाँ पे भी फॉर्म नहीं हो पाई, एंड अगेन इट फेल्ड विथ विंडोज़. विंडोज़ के साथ उसके कुछ फ़ोन अच्छे चले भी थे बट नॉट एवरी. सो इतना जो बूम था नोकिया का वो अब नीचे आ चुका था. सो जो एंड्रॉयड एंड एप्पल ने किया था इट्स अ एक्चुअल बिजनेस. डेवलपर्स जितने भी थे, ओनर्स जो भी थे एप्लीकेशंस के, जितने भी मैन्युफैक्चर थे हैंडसेट्स के, एवरी वन वॉज गेटिंग डिपेंडेंट ऑन एंड्रॉयड. जैसे मोदी जी कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, वैसे ही किया था एंड्रॉयड ने भी. एवरी वन, उसने सबको एक साथ लेके रखा था, सबको एक कम्युनिटी में जोड़ दिया था. सो नाउ हमें नोकिया से एक सीख तो मिलती है, बिजनेस करो बट अकेले में नहीं, अपने आजू बाजू कम्युनिटी फॉर्म करो, बिल्ड अ नेटवर्क. सो नोकिया ने चेंज लाया था बट इट वाज अ रॉन्ग चेंज. सो दिस वाज द फुल स्ट्रैटेजी ऑफ नोकिया. फुल कैसे नोकिया फेल हुआ, कैसे उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, पूरी नोकिया की आपको राम कथा हमने सुना दी. आपको अच्छे लगे तो हमें ज़रूर बताना, एक थम्स अप तो बनता है इसके लिए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग विथ मी एंड टेक केयर.